بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب آپ کو خوش آمدید۔ عربی خط جلی دیوانی تختی نمبر 1 کے ذیل میں آج ہماری پہلی ویڈیو ہے جو الف کے بارے میں ہے۔ الف کی دو قسمیں ہیں، ایک الف یہ ہے، اس کو ہم مرکب کہتے ہیں اور اس کو ہم مفرد کہتے ہیں۔ مرکب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کی ایک الگ تختی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الف کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ یعنی مابعد والے لفظ کے ساتھ اس کو ملانا چاہے تو پھر اس کو اس شکل میں بنا دیں گے، جسے الرحمن بنا دیتے ہیں تو یہاں پر یہ اس طرح بنا دیں گے، الرحیم بنا دیتے ہیں تو اسی طریقے پہ ہم یہ والا الف بنا دیتے ہیں۔ باقی دونوں ایک ہی جگہ پہ اور ایک دوسرے کے متبادل لکھے جا سکتے ہیں۔ خط دیوانی کے لیے ایک ہی سطر ہوتی ہے اور اس کے لیے 3 لائنیں 4 لائنیں نہیں ہوتی ہے، اور ایک ہی سطر کے اوپر سارے الفاظ لکھے جاتے ہیں سوائے چند حروف کے کہ وہ یہ جیم ہے، عین ہے، میم اور اس طرح سین وغیرہ اور با وغیرہ ہے، یہ سطر سے نیچے لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ جو الف ہے، سب سے پہلے ہم اس کی جو پیمائش کرتے ہیں، پیمائش کے لیے ہم نقطے کا استعمال کرتے ہیں، نستعلیق کی طرح نہیں کہ نستعلیق میں ہم خطاطی کے لیے قط استعمال کرتے تھے، تو یہاں پر ہم نقطے، اور نقطے پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہوگی، اور وہی طریقہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جس طرح ہم نے ایک جمع کا نشان بنایا تھا تو وہ جمع میں اس طرح گولائی کی شکل میں ہم نقطہ بناتے تھے، تو وہ گولائی کی شکل میں نقطہ نہیں ہوگا بلکہ یہ سیدھا نقطہ ہم بنا دیں گے، اور اس کا بھی سرا آسمان کی طرف اور نچلا سرا زمین کی طرف، اور باقی یہ کونے ادھر ادھر یعنی دائیں بائیں اس کے یہ کونے ہوتے تھے، اور اس کی مثال تسبیح کے دانے کی طرح دیا کرتے تھے کہ تسبیح کے دانے جو ایک ہی تار میں ہوتے ہیں، بالکل سیدھ میں ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کی پیمائش کے لیے سب سے پہلے جو کوشش کرنی ہے اور محنت کرنی ہے وہ نقطے پہ محنت کرنی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے ایک نقطہ اس کا سیکھنا ہے، اور اس کے اصول میں سے اور ہر خطا اور ہر کام کے سیکھنے کے لیے ہم نے ایک ضابطہ بنایا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جلدی ہم نے نہیں کرنی ہے، اور ہر لفظ کی جو سٹروک ہوتے ہیں چاہے 2 ہے یا 3 ہے، ہر ایک لفظ پہ ویسی بھی ہم نے محنت کرنی ہے، اور ہر لفظ میں جو مختلف سٹروکس ہوتے ہیں، ضرب ہوتے ہیں، ہر ایک ضرب پہ کافی محنت کرنی ہے ہم نے، تاکہ وہ ضرب اور وہ جو سٹروک ہے وہ قابو میں آ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم الف کے لیے، اور دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر یہ بنانا چاہے تو یہاں پر اس کو سٹروک کر دیتے ہیں اور اس میں سے ایک وہ برچہ نما شکل اور ایک بچہ شکل نکال دیتے ہیں، باقی وہی الف ہے۔ اور اگر اس کو گول بنانا چاہے تو پھر یہاں پہ اوپر تھوڑا سا کھول کے اور اس طرح یہ اوپر لکھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس طرح 3 نقطے لگا دیتے ہیں بالکل مکمل، اور پھر جب 3 نقطے بنا دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سٹروک ہم بنا دیتے ہیں، میں نے انگلش میں لکھا بھی ہے، سٹروک نمبر 1، اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف بالکل قلم کی سیدھ میں، بالکل یہاں پہ، البتہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مائل یعنی باہر سے اندر کی طرف نیچے لے کے آئیں گے، یہ نیچے سے اوپر کی طرف بھی اور اوپر سے نیچے کی طرف بھی لایا جا سکتا ہے، یہ جو پہلا جو سٹروک ہے اور پہلی جو سطر ہے، اور یہ اوپر نیچے نقطار ہم نہیں بنائیں گے بلکہ سیدھی سادی لکیر ہم بنا دیں گے، تو یہ سب سے پہلا سٹروک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا سٹروک ہے، اور یہاں پر ہم اس قلم کو تھوڑا سا نیچے اسی سطر میں لائیں گے تاکہ یہ جو لکیر ہے یہ موٹی بن جائے اور سواقت بن جائے، پھر آہستہ آہستہ یہ باہر نکالتے جائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے پھر دوسرا طریقہ یہ کرنا ہے کہ 1.5 نقطہ یہاں پہ ایک نشان لگا دیتے ہیں اور پھر ایک لکیر کھینچتے ہیں، اور لکیر کے باہر ہم اس طرح 1 2 3 4 5 6 نقطے لگا دیتے ہیں، اور چوتھا جو نقطہ ہے اس کے وسط میں سے یہاں پہ ایک وہ نشان لگا دیتے ہیں، اور الف کا مرکز اور سنٹر یہاں ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ گھومنا شروع ہو جائے گا، اور یہ سٹروک نمبر 1 ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر یہ قلم کا رخ تبدیل کر دیں گے اور یہ تیسرا سٹروک بن جائے گا اور تھوڑا سا یہ سیدھا بن جائے گا، پھر یہاں پر نیچے اس کو گرا دیں گے اور یہ چوتھا سٹروک بن جائے گا، پھر اس کے بعد یہ 5واں بن جائے گا، اور آخر میں یہ
छठा बन जाएगा। लेकिन अगर ये गोल बनाना है तो फिर यहाँ पर 5 के बाद फिर छठा और उसके बाद ये आखिर में ये 7 हो। इस तरह ये जो फासला होगा 1 कद के बराबर हो जाएगा और ये इसके के लिए जो हमने गुन्ना की शक्ल बनाई है ये तकरीबन 1.5 कद के नुक्ते के बराबर मिल जाएगा। बिल्कुल यही वही चीज़ है जो हमने यहाँ बनाई है, बस सिर्फ नुक्ता इसके गुन्ने का है। यहाँ पर नुक्ता खुल जाता है और यहाँ पर इसका जो नुक्ता है वो इसका जो गुन्ना है गुन्ना यहाँ पे नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसके लिए नुक्ते लगा देते हैं और आराम से इंशाल्लाह समझाने की कोशिश कर देंगे। कलम को सीधा पकड़ के एक नुक्ता बनाया, इसकी सीध में दूसरा नुक्ता बनाया और इसकी सीध में तीसरा नुक्ता बनाया। अब हमारी मर्ज़ी है कि पहला जो स्ट्रोक है ऊपर से नीचे की तरफ लाए और या नीचे से ऊपर। लेकिन जिस तरह शुरू में बताया हमने कि हर एक स्ट्रोक पे मेहनत करनी है और ये नहीं देखना है कि मैंने तो सीख लिया, बल्कि इसको आराम आराम से, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है, लगता बहुत आसान है। इसको हमने सीधी सादी पट्टी और सीधी सादी लकीर बनाई है, आप ये देख सकते हैं। तो ये समझ लें कि ये 3 कद की लाइन हो जाएगी और बिल्कुल कद का 5वां हिस्सा या छठा हिस्सा बन जाएगा। ये पहला स्ट्रोक है और इसके लिए हम लिखेंगे पहला स्ट्रोक नंबर 1। ये वीडियो शायद लंबी हो जाए, फिर इस पे तकरीबन ऊपर यानी 1.5 नुक्ता यानी इससे भी तकरीबन ऊपर यहाँ पे कलम बिल्कुल सीध में रखेंगे और इसी के मुत्तसिल ही नीचे लेके आएंगे ताकि ये जो पट्टी है ये 1.25 कद मोटी हो जाए। जब ये मुकम्मल हो गई तो इसके बाद हमने यहाँ से 1.5 कद के फासले पर एक और लकीर लगानी है और लकीर हम इंशाल्लाह आपके सामने बना देते हैं। जब लकीर हमने लगा दी तो उसके मुत्तसिल ही हमने इस तरह इस से थोड़ा सा नीचे 6 नुक्ते लगाने हैं। 6 नुक्तों में से 3 मुकम्मल ऊपर, बल्कि 1.5 का तो यहाँ अलिफ का दरमियान बन जाएगा। पूरा अलिफ तो वैसे 6 नुक्ते बन जाएगा, लेकिन इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ऊपर वाला हिस्सा 3.5 है और निचला जो है वो 2.5 कद है। इस तरह 4 नुक्ते हमने लगा दिए हैं, तो ये 5वां है। इसकी सीध में बिल्कुल हमने जिस तरह कहा कि नुक्तों पे हमने काफ़ी मेहनत करनी है। अब जब ये हमने लकीरें लगा दी है तो इसी के नीचे हम इस तरह एक लकीर लगा देंगे ताकि अलिफ का आखिरी हिस्सा इस पे आ जाए। ये जो हिस्सा हम पीछे खींचेंगे तो इसको हम स्ट्रोक नंबर 2 का नाम दे देंगे और ये यहाँ तक इसका ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा और ये यहाँ पे तीसरे कद के अख्तिताम पर, तीसरे नुक्ते के अख्तिताम पर इसका निचला हिस्सा बन जाएगा और यहाँ इसके करीब फिर गोलाई की शक्ल में, लेकिन लकीर से हम बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पर कलम को अंदरूनी हिस्से पे ज़्यादा दबाव डाल देंगे और बाहर को जो लकीर है इसको हम ढीला पकड़ेंगे तो ये अंदर जो लकीर है ये सीधी बन जाएगी और बाहर से गोलाई माइल बन जाएगी और इसको हम बारीकी कह सकते हैं। आराम आराम से हम इसको नीचे की तरफ ला भी रहे और इसको फैलाने की कोशिश भी करेंगे। देखो जिस तरह मैंने कहा कि इसके आखिर में ये हम इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसके बिल्कुल सीध में हमने इसका अलिफ का पहला वाला स्ट्रोक नंबर 2 बनाया। स्ट्रोक नंबर 2 के मुकम्मल होने के बाद फिर यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर जल्दी इसको बना दिया, बल्कि इसका जो मोड़ है वो ज़्यादा लंबा मोड़ लेंगे और इसको ये समझ लें कि यहाँ पर कलम का रुख यहाँ से तब्दील कर देंगे। यहाँ पर इस तरह था, यहाँ पर इसको गोलाई की शक्ल में नीचे लाएंगे। ये
पहला स्ट्रोक, ये दूसरा स्ट्रोक और ये तीसरा स्ट्रोक बन जाएगा। स्ट्रोक नंबर 3। ये लकीर सीधी है और ये बाहर से गोलाई माइल है, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी हम इसको गोलाई करने गोल करने की कोशिश कर देंगे। फिर उसके बाद ये स्ट्रोक नंबर 1, 2, ये 3 और ये चौथा स्ट्रोक है, और इसके लिए हम कलम को बिल्कुल मुकम्मल लगा देंगे, लेकिन गोलाई की शक्ल में। आप देख सकते हैं ये स्ट्रोक नंबर 5 है। स्ट्रोक 1, 2, 3 और ये 4 स्ट्रोक है। इसके बाद हम इसको यहाँ से ऊपर वाला नोक इस्तेमाल कर देंगे और इसको यहाँ तक लेके आएंगे, और लकीर के करीब जब पहुँचेंगे तो हम इसको सीधा कर देंगे, और इसका निचला हिस्सा हम निचले नोक से रिवर्स की शक्ल में इसको मुकम्मल करने की कोशिश कर देंगे। तो इसका जो पैंदा है वो ज़मीन से ऊपर होगा, और गोलाई की शक्ल में हम इसको मुकम्मल कर देंगे, और इसको हम कलम के नोक से मुकम्मल कर देंगे। तो यहाँ से ये भी बता दें कि ये एक कद के फासले पे बन जाएगा, और बाहर का जो फासला है इसकी सीध में, तो ये 1.5 नुक्ते के फासले पर हम इसको बना देंगे, और इसको हम इस तरह शो कर देंगे। ये हवा में देखें तकरीबन निसफ कत ये ऊपर है, और अगर इसको हिसाब कर ले तो तकरीबन ये कुछ कम कत है, और ये बिल्कुल सीधी है। मतलब इस पूरी वीडियो का ये है कि ये जल्दी इस तरह नहीं बनाए कि बस इस तरह बनाए, आराम आराम से लंबा मोड़ है। फिर उसके बाद ये, और ये नहीं बताया मैंने चौथा स्ट्रोक और ये 5वां और ये फिर ये छठा स्ट्रोक बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस गोल वाले अलिफ को बनाना चाहें तो इसके लिए भी यही तरीका अपना देंगे। मैंने शुरू में बताया कि वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन ये बामकसद वीडियो है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले नुक्ते लगा देते हैं, और ये 3 नुक्ते हमने बना दिए, और इसको हम बिल्कुल सीध में बना देंगे, और ये कलम भी सीधा रखेंगे, अलबत्ता थोड़ा सा अंदर की जानिब इस लकीर को ले जाएंगे, यानी देखिए यहाँ पे इस तरह, और स्ट्रोक को हमने ऊपर से लाया है। फिर इसके ऊपर से हम इस तरह एक और लगा देंगे, और थोड़ा सा इसको इसके मुत्तसिल लाने की कोशिश कर देंगे। देखिए अगर इसको हम नापे तो तकरीबन ये 1.25 कत या 1.5 कत बन जाएगा। इसको हम आराम आराम से इसको फिल कर देते हैं। यहाँ से फिर पैमाइश कर लेते हैं 1.5 कत के फासले पर, और इसके लिए हम कच्चे निशान लगाते हैं, क्योंकि वक़्त हमारे पास कम होता है। और इस तरह एक यहाँ से इस सीध से तकरीबन नीचे हम इस तरह नुक्ते लगा देते हैं, 3, 4, 5 और ये 6। तो 3 पे अलिफ की जो पुश्त है वो आ जाएगी, और इस पे बिल्कुल दरमियान, और फिर इसके बाद यहाँ से मुड़ना शुरू हो जाएगा अलिफ। तो आराम आराम से मैं यहाँ पे जिस तरह शुरू में बताया था कि इस पे ज़्यादा दबाव डाल देंगे, और पर इस पे, और ज़्यादा दबाव डालने का मतलब है कि इस अंदर की जो लकीर है इसको हम सीधी बना देंगे, और आराम आराम से हम लकीर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे मैं पहुँच गया, तो इसको मज़ीद इसको यहाँ पे इसको फैला देंगे। स्ट्रोक नंबर 1, स्ट्रोक नंबर 2। फिर इसके बाद ये लकीर इसके साथ मिलाने की कोशिश कर देंगे, और ये कलम का रुख मैंने तब्दील कर दिया, और उसको गोलाई की शक्ल में यहाँ लेके आए। फिर मज़ीद इसको लेके आए, और जो ही लकीर और पैंदा ज़मीन के साथ लगा तो हम इसको ज़मीन पे मज़ीद इस तरह रगड़ा देंगे, और थोड़ा सा ऊपर उठा के थोड़ा सा खोल देंगे, और आखिर में इसी के करीब ला देंगे और उसका गुन्ना बना देंगे। तो ये अलिफ हमने मुकम्मल कर दिया है, और इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। तो ये फासला
1 नुक्ते का हो जाएगा और ये 1.5 नुक्ते का हो जाएगा। इंशाल्लाह समझ में आई होगी। काफ़ी मुश्किल है और आसान नहीं है। तो SPB हमने मेहनत करनी है पहले स्ट्रोक पे, फिर दूसरे को इसके करीब लाके, फिर ये जो है SPB करनी है। जल्दी इसको नहीं मोड़ना है बल्कि लंबा मोड़ देना है। और मैं आराम से इसके लिए स्ट्रोक बता देता हूँ। स्ट्रोक नंबर 2, फिर ये 3 और इसको सीध में लाएंगे, कलम का रुख तब्दील कर देंगे। फिर उसके बाद ये 4 है, ये 1, ये 2 है और फिर इसके बाद ये 5 है, फिर इसके बाद ये 6 है, फिर उसके बाद इसको हम 7 बना देते हैं। कलम के साथ अगर इसको बनाना चाहे तो भी इस तरीके पे बना देते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इस पे काफ़ी मेहनत की है हमने, उसे उठा देते हैं। पेन पे भी इसी तरीके पे बना देते हैं। और मैंने कहा कि जिस तरह ये ऊपर से लेके जाती है पट्टी, नीचे से ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ ला के आते हैं और फिर इसके मुत्तसिल ला के यहाँ लेके आते हैं और फिर ये लंबा मोड़ दे देते हैं और फिर उसके बाद इसको मोड़ देते हैं। तो इसमें से या ये बना देते हैं और या ये बना देते हैं। बहरहाल मैं दोनों बना देता हूँ ताकि आसान हो जाए। फिर उसके बाद दूसरा में बना देता हूँ। देखें आराम से, ये मुरक्कब है और ये मुफरद है। मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे बना देते हैं। देखें, ये देखें, बिल्कुल सीधी लकीर है और अंदर की जानिब इसको हम लेके आते हैं। फिर इसके बाद ये बाहर निकाल देते हैं और जो ही इसके करीब पहुंचते हैं तो इसके बाद मोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन फुल मोड़ नहीं, लंबा मोड़ है। उसके बाद इसको हम मामूली मोड़ देते हैं और आखिर में बर्चा इसमें से निकाल देते हैं। और अगर गोल अले बनाना चाहे, जिसको हम मुरक्कब के नाम से कह देते हैं, समझते हैं, तो इस तरीके पर बना देते हैं। देखिए आराम से इसको बना देंगे। बाल पेन के साथ भी इसी तरीके पर बना देंगे। चाहे मुरक्कब वाले बनाना है, ये चाहे मुफरद बनाना है, टच आना है इसमें और फिर इसको खोलना है। दोबारा मैं बना देता हूँ गोल अलिफ को बिलखुसूस। ये थोड़ा सा बेढंगा है और बेढंगा बनाने में इसका हुस्न और जमाल है। जिस तरह यहाँ पर मैंने कहा कि ये इसका जो पैंदा है ऊपर है और बेढंगा सा है, क्योंकि यहाँ पर पतला है, फिर यहाँ पर मोटा है, फिर यहाँ पर दोबारा पतला है, तो ये बेढंगा है और हवा में है, बिल्कुल हवा में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को स्वाब की नीयत से भी शेयर कीजिएगा और उस पर अपने मुस्बत कमेंट से भी नवाजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।